Okay, everybody. Good evening. Jai Hind. Let's quickly open our cameras, okay, so that the session can be an interactive one, okay. And we already have our guest with us, right? Ayush. Okay, just give me a second, okay. Let everybody join. First start karte hain. Just 2 minutes. Okay, everybody. Bhumika, Mayank, Abhinav, Monica. Hello, Dee. Hi, Anjali, Amit, Jai Hind. Jai Hind, Chandrasekhar, Renu. Okay, chalo, let's start. Okay. So let's welcome our guest for the day, Ayush Raghav. He was twice recommended for no, in a span of just 1 month, right? And both for army, first for the army and thereafter for the navy pilot, right, Ayush? Yes, good evening, ma'am. Good evening, Ayush. And I would like Uh, to tell that before being a student, Ayush and I basically met on LinkedIn. Okay, and it was just a random message. Okay, and that random message, I don't know, turned how it was just written there. Yeah, yeah, it was planned. I yeah, say correct. starting. Say. Okay. So Ayush, let's start with your journey. Okay. We'll start with a short introduction of you. Yeah. Go. Sure. So, hello everyone. I am Ayush Raghav. I come from district Bulandshahr of Uttar Pradesh. So, this year I have only completed my engineering. I was in the final year. So, in my final year only, I got recommended for army and then for navy pilot entry. And then I got fit in the army and is going AMB for navy. Okay. So we would love to know about what was your motivation for the defense services? The first and the foremost question, right? Hmm. My motivation was I come from completely civil background. Like my father is a bus conductor and my mother is a homemaker. So starting say I used to see one of my uncle was in the army. So he was a soldier, but I have seen that life. Like starting से वो बठिंडा कैंट में रहते थे, so वहाँ पे I used to live. तो मैं वहाँ पर देखा था 1 साल. Then after that, in my class 10th I think क्लास 10th में वो इंसिडेंट हुआ था इन 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक. सो उससे पहले आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पायलट, बस सिविलियन पायलट. तो फिर क्लास 10th में पता चला कि सिविलियन पायलट बनने के लिए तो 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे. सो माय फैमिली सेड नो. सो वो भी मुझे रीजन भी पता था. देन माय फादर टोल्ड मी कि जब वो अभिनंदन सर कैप्चर्ड हुए थे, Mhm. वो प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे, वहां से मुझे पता चला कि थ्रू एनडीए वी कैन बिकम अ फाइटर पायलट. सो वहां भी आप पायलट बन सकते हो. तो बस फिर एनडीए पता चला. फिर आफ्टर माई क्लास 12th आई टुक अ ड्रॉप फॉर जेई. एंड बेसिकली माई मेन एम वॉज एनडीए, बट वो घर वालों को कन्विंस करने के लिए आई सेड जेई. सो फ्रॉम देयर ओनली आई अपियर्ड फॉर एनडीए. वहां से मैंने 3 बार एनडीए रिटर्न क्लियर किया था. फिर उसके बाद 2 टीएस थी और एक नेवी, तो 6 अटेम्प्ट वॉज 12+ एंट्री वाले. तो उसमें आई गॉट 5 टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट कंजिक्यूटिवली स्टार्टिंग से. 3 एनडीए और 2 टीएस और एक स्क्रीन आउट उसके बाद. देन क्या हुआ था, वो ड्रॉप के बाद आफ्टर ड्रॉप आई टुक एडमिशन इन वन ऑफ द कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इन गाजियाबाद. तो वहां से इन 2023 मेरे 10+2 के अटेम्प्ट ओवर हो गए थे. तो आफ्टर दैट वो कॉलेज लाइफ और आगे उसकी बात करते हैं आगे बात. Right. Okay. So as you said that you took a drop. Okay. हम्म. Let's directly continue with the interview part. हम्म. As you said, you took a drop. Now the question that Ayu must have asked you, right? Drop क्यों लिया? Is it right? हाँ. So how did you justify that? कि drop क्यों लिया and what should be the approach of a candidate
No, if he is taking a drop, how can he justify that? हाँ, सबसे पहले मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ जो पर्सनल मैंने फेस किया था वहाँ पे। आयो ने मेरे से हिंदी में बात की थी वहाँ से इस वाले इंसिडेंट पे, तो उसने डायरेक्टली बोला, यार तूने ड्रॉप तो लिया और तेरे जेई में आए 79% तो तू घर वालों को पागल बना रहा है सीधा मतलब, और तेरे से एनडीए तो क्लियर हुआ बट तू वहां भी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो मतलब वो प्रेशराइज कर रहा था मेरे को, हाँ बेसिकली वो जानना चाह रहा था। लेकिन वहां से मेरे को क्या था, मेरे को पता था मेरे यहाँ से पॉइंट निकाल सकता हूँ, वो हुक वाली स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी कि मेरा क्या था, स्टार्टिंग से मैथ्स स्ट्रांग था हमेशा से। तो मेरे मैथ्स में वहां भी 96 मार्क्स थे आई थिंक, 12th में और 10th में भी अच्छे थे, 94 से शायद। देन वहां से मैंने उसको कन्विंस किया कि सर मैंने कभी जेई के लिए ड्रॉप नहीं लिया, मैंने हमेशा से एनडीए के लिए ड्रॉप लिया। वहां से मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए भी क्लियर किया और अच्छे मार्क्स से किया। और फिर उसने बोला कि तब तेरे, फिर मेरे क्या था, जेई मीन्स में भी मैथ्स में मार्क्स अच्छे थे। तो मैंने उसको वहां कन्विंस किया कि सर मैंने हमेशा से मैथ्स पढ़ी, जो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी थी वो सिर्फ एनडीए वाली पढ़ी थी, उसके बेस पे मेरे 79 परसेंटाइल भी आ गए, वो भी मतलब इतना इजीली नहीं आ रहे थे। तो वहां से यू जस्ट हैव टू लुक फॉर योर स्ट्रॉन्ग एरिया, कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, उसको थोड़ा हाईलाइट करोगे तो आयो कन्विंस्ड हो जाता है। मेरे को लगता है वो ड्रॉप वाले पॉइंट को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है अगर आपने कुछ नहीं किया है तो, लेकिन अगर आपने कुछ कर रखा है देन इट्स इजी। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि 12th के बाद दे टेक अ ड्रॉप, और आफ्टर ग्रेजुएशन दे टेक अ ड्रॉप फॉर देयर मास्टर्स। तो इन दैट मीनवाइल द टाइम जो होता है उसके बीच का, तो व्हाट एसएसबी बेसिकली एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू कि आप खाली नहीं बैठे उस टाइम पे, यू आर डूइंग समथिंग, राइट? तो इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई दैट थिंग तो वो हो जाता है, राइट? ओके, सो आयुष, लेट्स स्टार्ट विद नाउ योर प्रीवियस एनडीए अटेम्प्ट्स, उनकी बात करते हैं। So, what do you think what was the reason that you were getting convinced out in those attempts? एक बार मैं स्टार्टिंग से स्टोरी बताता हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या था, फ्रॉम द स्कूल ओनली आई वाज अ शाय पर्सन, मतलब जो कभी लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता है और सिर्फ पढ़ता है, जो सिर्फ एकेडमिक्स में अपना ध्यान देता है। तो मेरा एकेडमिक्स हमेशा से अच्छा था लेकिन सोशल लाइफ एकदम खराब थी। लेकिन वही फिर एनडीए में यू कांट गो लाइक दिस ना, कि आपका ये सब अच्छा है, सिर्फ एकेडमिक्स अच्छा है। तो स्टार्टिंग से क्या हुआ था, मैंने 12th में एनडीए तो क्लियर किया ड्रॉप के बाद, लेकिन वो एसएसबी में काम करना, वो जो नेसेसरी चीजें थी वो नहीं की। सो मेजर रीजन मेरे से आयो ने भी पूछा था अभी इन माई 8th अटेम्प्ट कि ऐसा तूने क्या इम्प्रूव किया दैट यू गॉट रिकमेंडेड अपने आर्मी वाले अटेम्प्ट में। तो मैंने उसको, वही मैं आपको बताता हूँ, मैंने 4 रीजन बताए उनको सबको। सबसे पहले मेरी सोशल लाइफ खराब थी एकदम। मैंने कभी किसी मतलब मेल से तो इंटरेक्ट किया ही था अपने दोस्तों में, लेकिन कभी किसी फीमेल से इंटरेक्ट नहीं किया था अपने स्कूल लाइफ में। तो कॉलेज में आया, कॉलेज में आके वो चीजें, क्लब्स में पार्टिसिपेशन किया, हैकाथॉन्स करी और मैराथॉन्स करी, बहुत सारी चीजें करी उसके बाद। और फिर क्या था, मेरा फिजिकल भी बहुत अच्छा नहीं था। आई वॉज 82 जब मैं अपने फर्स्ट एनडीए अटेम्प्ट में गया था, और अभी कोई मेरा पिक्चर देखेगा तो कहेगा कि भाई तो एनडीए क्यों कर रहा था। सो इट वॉज लाइक दिस। सो मैंने अपने कॉलेज में गया था, फिर सेकेंड ईयर से आई थिंक मैंने वो काम करना शुरू किया। सो मैंने इन द स्पैन ऑफ 1.5 ईयर मैंने 14 kg लॉस किया। तो ऐसा कंडीशन आ गया था कि हाँ अब मैं जा सकता हूँ अच्छे से। और एक और चीज थी कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर नहीं था। कभी मैंने कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों में पार्ट नहीं लिया था अपने स्कूल में, ये रियलिटी थी। मैंने वही एकेडमिक्स में था तो वही साइंस प्रोजेक्ट वाले कंपटीशन में पार्ट लिया, कोई जीके क्विज है उसमें पार्ट लिया, बस ये किया था। कभी ऐसे खुद से बोला नहीं था स्टेज पे। सो आफ्टर व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज ना, सो मेरे को पता था ये 3-4 चीजें मेरे को काम करनी है। मेरे को अपना सोशल नेटवर्क सुधारना है, अपनी कम्युनिकेशन सुधारना है, अपना फिजिकल सुधारना है। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट ईयर में जाते ही अपने 3rd डे में कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन की। और एक ओडेसी लिटरेरी सोसाइटी थी। सो वो लोग क्या करते थे, बेसिकली कम्युनिकेशन के रिलेटेड जीडी कराते थे, कभी कभी बेसिक एक्सरसाइज कराते थे, तो वो ज्वाइन की। उसके बाद क्या हो गया था, एक टेक्निकल कॉलेज में, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि आप कुछ कर रहे हो, मतलब मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को मन है कि उसको आर्मी जाना है, तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ आर्मी में जाना है। आपके पास हमेशा एक प्लान भी होना चाहिए, या एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपके पास स्किल हो जिस पे आप काम कर सकते हो। सो कॉलेज में जाके भाई टेक क्लब ज्वाइन किया, तो टेक क्लब में आप सीनियर से इंटरेक्ट करते हो, अपने साथ वालों से इंटरेक्ट करते हो। तो वहां से मेरे को हैकाथॉन्स का पता चला, जहाँ से उसके बाद फिर मैं हैकाथॉन्स में भी अच्छा किया। तो ऐसा सिर्फ ट्राई करके नहीं छोड़ी कोई चीज। तो उसके थ्रू मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी काम किया था मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ कोल में। सो वो अच्छा पार्ट हुआ। तो ये 4 चीजें थी।
जिन पे मैंने स्टार्टिंग से वर्क किया। And I think Ayush, you were also a part of NCC, right? So if we talk about basically the NCC part, so NCC क्या role play करता है in the shaping of a personality of a candidate? सबसे पहले मैं एनसीसी से रिलेटेड सबसे जो बेस्ट चीज होती है वो आपका सर्कल, मेरे को जो लगता है आप प्रोफेशनलिज्म जितना छोड़ दो, उसके अलावा जो आपका सर्कल जो बनेगा एनसीसी में, दैट इज बेस्ट, कि वो लोग आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आते हैं, तो उससे आपका सोशल फैक्टर तो अच्छा हुआ ही। सेकेंड थिंग, आप कैंप में जाओगे, आप कैंप में कुछ ना कुछ नई स्किल सीखोगे। मैंने वहां से कैंप में अपना, हमारे यहाँ .22 राइफल की शूटिंग सिखाते थे, एक मतलब 4 खोखे मिलते थे हमको, वो फायर कराते थे। तो वहां से मेरे को शूटिंग का पता चला, तो शूटिंग में इंटरेस्ट आया। फिर मैंने कॉलेज में अपने आके एयर पिस्टल से शूटिंग कंटिन्यू करी 2 साल। तो वो एक आप कोई नई स्किल सीख रहे हो। सेकंड, और एक और चीज कि आपको वो, आप चाहते हो आर्मी में जाना, तो वो लाइफ आपको रहनी आ जाती है कि मैं एक बार वो रह पाऊंगा। आप सुबह उठ रहे हो, आप वो शेड्यूल फॉलो कर रहे हो। सो आई थिंक आपकी पर्सनल लाइफ, आपको एक अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है कि हाँ, मैं अगर एनसीसी का पार्ट हूँ तो मेरा कैरेक्टर भी ऐसा रहेगा और मेरा बिहेवियर भी ऐसा रहेगा, और आपकी सोशल लाइफ तो अच्छी है। Right. Even if I talk about myself also, तो NCC ज्वाइन करने से पहले I was a very introvert person. मैं बोलती नहीं थी जल्दी कुछ भी किसी से, and my public speaking was pathetic. सच में मैं लोगों से इंटरेक्ट करने में डरती थी कि अगर मैं इनसे इंग्लिश में बात करूंगी, मैं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बट वंस आई जॉइंड एनसीसी, ऑफिसर्स से मौका मिला बात करने का। वी गॉट टू इंटरेक्ट विद द ऑफिसर्स, वो भी कितने हाई हाई रैंक्स के, राइट? सो आई वुड आल्सो सजेस्ट कि सेम if you are getting a chance to join NCC, then definitely आप join करो. It's a golden chance for you. आपके if you are going for written entry और plus आप NCC करके जा रहे हो, it's a plus point for you. आप पक्का recommend के chances आपके बढ़ जाते हैं, right? हाँ, बिल्कुल। Yes. Okay, Ayush. Now let's talk about let's start with the screening process first. Okay, what was your strategy for getting screened in? Since you got screened in for 5 consecutive times, no? Like, I think it was your 8th attempt in which you got recommended for army. Yeah, 8th attempt, yeah. 8th and 9th for navy. 9th for navy. So no screen outs before that. No, 2 screen outs before. 2 screen outs. So what हाँ. was the mistake that you were doing previously? Screen out क्यों हो गए थे? बेसिकली मैं जो अपना रीजन बताऊंगा, पहले मैं बता दूं कि मैं स्टार्टिंग में 5 टाइम स्क्रीनिंग कैसे हो गया। तो बेसिकली मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ फॉर स्क्रीनिंग इज दैट कि स्क्रीनिंग आपके हाथ में है, मेरे को लगता है 70% आपके हाथ में, 70 या 75%, क्योंकि 4 टास्क होने हैं वहां पे, 4 में से 3 आपके पास है। OIR आपके पास है, आपकी स्टोरी राइटिंग आपके पास है, आपका नरेशन आपके पास है। जीडी में मतलब मेरे को आपने भी सुना होगा मैम कि ज्यादातर लोग स्क्रीनिंग के टाइम पे ब्लेम करते हैं कि ग्रुप खराब था। वो सिर्फ 25% है, बाकी 75% मेरे हाथ में था। तो मैंने स्टार्टिंग से वही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी कि मैं हमेशा स्टोरी अपने से रिलेटेड बनाता था, जो मेरे PIQ में या मेरी लाइफ से रिलेटेड है। तो स्टोरी अच्छी होती थी। OIR हमेशा से मेरा अच्छा था, रीजनिंग और मैथ्स था, वो तो आसान होता है, वो लोग प्रैक्टिस करके कर लेते हैं। नरेशन में ये होता है कि I would like to ask कि since you told about कि story you were making around yourself ना in the PPDT part, तो क्या जिस एंट्री के लिए आप जा रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर टेक एंट्री, आप सबसे पहले SSC टेक के लिए गए फॉर आर्मी, राइट? उसमें यू गॉट रेकमेंडेड, तो उसके PPDT का पार्ट में is it important to make the story around something technical PPDT में if you are going for that specific entry? No, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है, ये सब मिथ है, क्योंकि स्क्रीनिंग इज सेम फॉर ऑल दी एंट्रीज और कोई भी जजमेंट डिफरेंट नहीं है, वो जज डिफरेंटली नहीं कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग पार्ट, अब फॉर लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई ट्रैक से रिलेटेड स्टोरी थी मेरे जालन फर्स्ट जिस अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ, तो एक पर्सन मतलब ट्रेल थी, नॉर्मल माउंटेन ट्रेल थी, उस पर भाग रहा था। तो उसमें मैं कैसे टेक से भी पर्सन दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कर सकता हूँ अगर मैं टेक बैकग्राउंड से आ रहा हूँ कि मैं उस पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो बता सकता हूँ कि वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट बेसिकली। तो ये हो सकता है, बट आप उसको ऐसा नहीं बना सकते कि आप कोई प्री कंसीव्ड स्टोरी उसमें फोर्स करोगे। तो ये मैं सजेस्ट बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए आपको अगर हम पहले का देखें तो पहले का इट वाज नॉट दैट मच टफ ना, वहाँ पे कम लोग आते थे। नाउ द स्क्रीनिंग की रिपोर्टिंग ही आपकी 300-400 की होती है। हाँ, इजीली। और उसमें कितने 50 से 60 स्क्रीनिंग, मैक्स टू मैक्स 60 है ना, उससे ज्यादा नहीं होते कभी। एंड तो इसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर इज कि यू हैव टू परफॉर्म इक्वली इन ऑल ऑफ द टास्क। यू हैव टू गिव योर 100% इन परसेप्शन, नरेशन प्लस जीडी। आप अपना पूरा दो, राइट? हाँ, वो आपके हाथ में है, मतलब आप अच्छा करोगे तो आप स्क्रीनिंग हो जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा।
अगर आपने स्टोरी अच्छी लिखी होगी तो आप नरेशन भी अच्छा करोगे आगे। करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट, स्क्रीनिंग के बाद। हाँ, स्क्रीनिंग के So बाद। did OPAM and CSS CESSS हाँ हुए थे, हाँ है ना? हाँ, So how नेवी was, अटेम्प्ट। yeah, how was like, कैसा था ये सब? बेसिकली वो भी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। इट इज लाइक कि आपका साइक पहले हो रहा है मुझे लगता है, क्योंकि उसमें बेसिकली एक पार्ट था जिसमें CSSS में एक पार्ट था जिसमें क्वेश्चंस थे कि अगर जैसे एक क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट था कि अगर मैं डिसीजन लेता हूँ तो और अपने सीनियर से कंसल्ट करता हूँ, तो आप इससे कंप्लीटली एग्री करते हो, स्लाइटली एग्री करते हो, न्यूट्रल है या डिसएग्री करते हो या एग्री। तो मैं उसको एग्री लगाऊंगा, उसे स्ट्रांगली एग्री नहीं लगाऊंगा, ना न्यूट्रल लगाऊंगा, एग्री लगाया मैंने। तो बेसिकली वो आपको जज कर रहा है कि आप कैसे पर्सन हो। तो ऐसी चीज थी। बाकी वो थे जो आपकी बेसिक रीजनिंग चेक करते हैं, क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन थे। और ओपैम में थोड़े गेम्स रिलेटेड क्वेश्चन थे। गेम से रिलेटेड। हाँ So basically वही रीजनिंग का पार्ट, राइट? हाँ, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर रीजनिंग था, प्रॉपर रीजनिंग। इजी फॉर एवरीवन मेरे को लगता है वो। करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड फेज। हाँ, साइक। नाउ सेकंड फेज में आपका साइक, GTO एंड इंटरव्यू पार्ट आ रहा है। ओके, सो व्हाट वाज योर मिस्टेक्स इन हाँ, स्टेट? मैं इसको बता देता हूँ। हाँ, लाइक मैं 2 टाइम्स स्क्रीन आउट भी हुआ था अपने 2 अटेम्प्ट्स में। आफ्टर 5 कॉन्फ्रेंस आउट मैं एक बार स्क्रीन आउट हुआ। उसमें क्या था, लैक ऑफ प्रिपरेशन। बेसिकली मैं सबको सजेस्ट करूंगा, इफ यू आर गोइंग फॉर SSB, चाहे आप SSB, अगर आपको लगता है कि मेरी 1 हफ्ते बाद SSB है और मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, तो उसे छोड़ दो। मेरा सजेशन, ये पर्सनल सजेशन, मैंने कभी नहीं छोड़ी, लेकिन अगर आप लैक ऑफ प्रिपरेशन के साथ जाओगे तो स्क्रीन आउट होके कोई फायदा नहीं है। तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट में यही हुआ था, मतलब 6th अटेम्प्ट में, सॉरी। तो उसमें यही हुआ था कि मैं प्रिपरेशन के साथ नहीं गया था, क्योंकि मैं कॉलेज देख रहा था, तो मैंने स्टोरी भी अच्छी नहीं बनाई थी, तो मेरा नरेशन भी अच्छा नहीं हुआ था, तो ग्रुप परफॉर्मेंस भी खराब। सो ऐसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थे जो खराब हुए, जिसकी वजह से मैं स्क्रीन आउट हुआ, मेरे को लगता है। करेक्ट। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन? यार देखो, कम्युनिकेशन का इफ आई टेल यू ना, सो कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद योरसेल्फ ओनली। आप घर से किसी से नहीं बात करो, आपको लोग बोलते हैं कि आप मिरर के सामने जाके नो बोलो, ये सब करो, नो, नेवर डू दैट। मिरर के सामने जाओगे, पिंपल निकला है, इधर इधर दिमाग जाएगा कि इधर दाने पड़े हुए हैं मेरे, ना, ये सब से नहीं होगा। स्टार्ट विद टॉकिंग टू योरसेल्फ, खुद से बात करो। ना पूरा दिन का रूटीन हो गया, अगर रात में जाओ, बैठो आराम से और उसमें खुद से बातें करो, क्वेश्चन योरसेल्फ एंड आंसर योरसेल्फ, ऐसे करो। दैट्स हाउ यू गोना इम्प्रूव। देन फिर जब आपका धीरे धीरे आप लेवल अप होते जाओ, तो कोई भी टॉपिक ले लो और उस पर एक लेक्चरेट दे दो, इजी। या हम्म, करेक्ट। ओके आयुष, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइक पार्ट। हम्म। सो साइक पार्ट में व्हाट आर द मिथ्स जो नो बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बताते हैं? क्या हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज आपकी एक्सेप्टेबल होती हैं, या कि वही ऑर्डिनरी स्टोरीज आपकी एक्सेप्ट होती है? मेरा सजेशन या मेरे अकॉर्डिंग, सिर्फ आपको मतलब हीरो नहीं बनना है, मतलब हीरो बनना है, लेकिन वो दूसरा वाला हीरो नहीं बनना है, या सुपर आपको हीरो एक्स्ट्रा नहीं? ऑर्डिनरी, हाँ, सुपर हीरो नहीं बनने की कोशिश करनी। करेक्ट। आप नॉर्मल स्टोरी भी लिखोगे ना, और वो थोड़ी फीजिबल होगी, पॉसिबल है, और थोड़ा जो परसेप्शन दिखाया है स्टोरी में, वो पिक्चर में, सॉरी, वो आपने अच्छे से परसीव किया है कि नहीं। तो सिंपल वही है। मैं भी ऐसा कोई हाईफाई स्टोरी नहीं बनाता था, मैं भी नॉर्मल स्टोरीज हमेशा बनाता था, लेकिन उसमें वही थोड़ा उसको ऐसा बनाता था कि वो एकदम लेमैन लैंग्वेज ना हो। तो उसमें आप एक्शंस अच्छे ऐड करो, कुछ टर्म्स ऐड करो। अगर आप किसी, लेट्स से मैं हैकाथॉन से रिलेटेड बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसमें अच्छे अच्छे टर्म्स ऐड करता था, थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप जैसी चीज दिखाता था। तो इट्स ऑल दिस कि आप नॉर्मल स्टोरी बनाओ, बस उसकी क्वालिटी अच्छी रखो, वो करेक्ट, थीम बेसिकली नॉर्मल द होता है। डिटेलिंग पार्ट ऑफ द हाँ, स्टोरी, है ना, यस, कि आप जो हम माइन्यूट माइक्रो एक्शन डिटेल्स पे बोलते हैं। जाओ। हम्म, करेक्ट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द TAT पिक्चर्स, कि क्या मिथ्स हैं बेसिकली, अगर देखा जाए कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप ऐसी ऐसी स्टोरीज लिखो, बट डू यू थिंक कि स्टोरीज कॉपी की जा सकती हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ना सबका परसेप्शन अलग अलग है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोरी थी, अभी मेरे लास्ट अटेम्प्ट में आई थी नेवी वाले में, उसमें एक डॉक्टर, लोगों को डॉक्टर लगा, मेरे को लगा था एक सिंपल यंग पर्सन था जिसने कोट पहना हुआ था। किसी को वो व्हाइट कोट लगा, किसी को ब्लैक कोट लगा। अब मैंने अगर उसको ब्लैक कोट परसीव किया तो मैंने सिंपल उसको ऑफिस पर्सन बनाया, बाकी लोगों ने उसको व्हाइट कोट परसीव किया तो उसको डॉक्टर बनाया। अब यहाँ पे तो दोनों के कन्फ्लिक्ट है। अब डॉक्टर बनाया, वहां पे थोड़ा बॉटल्स भी रखी हुई थी, तो उन्होंने वहां से रिलेट की।
मैंने थोड़ा उसको ऑफिस में थोड़ा वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उससे रिलेट किया था। तो यही डिफरेंस है, मैं बोलता हूँ कि जो मिथ्स है कि आप सब बोलते हैं कि अगर आपको ट्रेल वाली स्टोरी दिखे तो आप वही बना दो सीधा कि वो मैराथन दौड़ रहा है या फिर रनिंग कर रहा है या रनिंग प्रैक्टिस कर रहा है। तो उससे अच्छा आप कुछ नया चीज ऐड करो। मैं हमेशा डिफरेंट एक्टिविटी बनाता था। अगर वो रनिंग कर रहा है मैराथन, हो सकता है कोई एनसीसी वाला हो जो अपने कॉलेज के साथ अपनी टीम के साथ कोई एनरोलमेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब थोड़ा डिफरेंट फैक्टर। करेक्ट। सो बेसिकली अगर पिक्चर्स ऐसी आ रही हैं जिन सिनारियोज को आपने खुद फेस किया है, तो मेक इट अराउंड दैट सिनारियो। हाँ बिल्कुल। ट्राई करो अपने पीआईक्यू से कनेक्ट करो, दैट विल शो योर पर्सनालिटी, बिकॉज साइक इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी। पर्सनैलिटी। और आपकी पर्सनालिटी कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके मैम, रीडिंग से कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव, डेली करंट रीडिंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। फिर कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट कि नो आपका रीडिंग अच्छा हो जाएगा, रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, लेकिन कम्युनिकेशन तब तक अच्छा नहीं होगा अंटिल यू विल गेन द कॉन्फिडेंस टू टॉक टू योरसेल्फ। जब तक खुद से बात नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू टॉक टू अदर्स। गॉट इट? ओके। जैसे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि लोग कम्युनिकेशन का पूछते हैं। मेरे अकॉर्डिंग पता है, सबके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि फॉर एसएसबी कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट इंग्लिश, कि आप जितना अच्छे से इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर लोगे तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा है और आप रिकमेंड होने के चांस अच्छे हैं। तो ये बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। तो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट कि आप अपने व्यू अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं। मेरा 8th अटेम्प्ट था, मेरा 9th अटेम्प्ट था, जिन दोनों अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ। 8th अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू 1.15 मिनट्स चला था, 1 hour and 15 minutes। तो उसमें से हाफ एन आवर मैंने हिंदी बोली। और इन माई 9th अटेम्प्ट जहाँ पे मैं फिर से रिकमेंड हुआ, मेरा 30 मिनट्स इंटरव्यू चला, उसमें से लगभग मैंने 10 to 15 मिनट्स हिंदी बोली। तो इंटरव्यूअर भी मेरे से हिंदी में बात कर रहा था, वो भी मेरे साथ फ्रैंक हुआ। तो दे डोंट वांट कि आप इंग्लिश में अच्छे से फ्लुएंटली बात करो, दे वांट कि अच्छे से अपना व्यू या तो तेरा आंसर है वो अच्छे से बता दे, तो हिंदी में बात कर। वो एकदम बिल्कुल शांत हिंदी वाले आ जाते हैं, जैसा तेरा दोस्त, हमारा दोस्त बात कर रहा है वैसे आ जाते हैं, ऐसी टोन में बात कर सकते हैं वो आपसे। करेक्ट। यस। सो ये है ना कि लाइक लैंग्वेज इज अबाउट, हाँ हिंदी ठीक है कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज इफ वी से। हाँ। इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट कि जब आप अगर फौज में जा रहे हो तो यू विल बी हम्म। यू नो इंटरेक्टिंग विद द पीपल, विद द यू कैन से कि डिफेंस फोर्सेस फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज ना। तो इंग्लिश वहां पे इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी। बट यस, आप जब तक अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, क्या तब तक इट इज गुड टू गो विद एनी लैंग्वेज, राइट? ओके आयुष, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लैंक स्टोरी। ब्लैंक स्टोरी कैसी होनी चाहिए? What kind of blank story were you making in your previous attempts, and what blank story you made in your 8th and 9th attempt? हाँ, तो मेरे को लगता है ब्लैंक स्टोरी का जो पर्पस है हम्म। वो यही है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है जब सामने कुछ है नहीं। हम्म। जो मैं ऐसा सोचता था, मेरे को जो लगता है, तो मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि मेरे को अब एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपनी एक अच्छी चीज शो करने के लिए। तो हमेशा मैंने स्टोरी ऐसी बनाई है कि जो मैंने लाइफ में किया है एक्चुअली, जो मेरे पीआईक्यू में मेंशन्ड है, और जो एक फीजिबल चीज भी है और ऐसा भी दिखा रहा है कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बनने के लायक भी हूँ, जिसमें क्वालिटीज भी। तो उससे पहले मैं जो स्टोरीज बना रहा था पांचों, वो कोज्ड स्टोरीज थी। तो इट्स लाइक जो नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि आप कुछ ऑर्गेनाइज करा दो, कुछ इनिशिएटिव ले लो। तो ऐसा नहीं कर रहा था मैं इस बार जो मैंने एनसीसी में किया था, मेरा एनसीसी में 2-3 रोल थे कि मैं एक्टिविटी इंचार्ज था और कभी कभी एनरोलमेंट होता था, तो वहाँ उससे रिलेटेड ही स्टोरीज रखी थी मैंने। Right. So it is important to connect your blank story with हाँ। your PIQ, right? PI। Correct. एंड ये इतना इम्पोर्टेंस इसलिए प्ले करता है ना क्योंकि अब वो आपका एक ऐसा स्लाइड होता है जिसमें योर इनर थॉट्स कम आउट, हम्म। राइट? क्योंकि आपके सामने कोई पिक्चर नहीं होती उस टाइम पे, जो आपके यस यस। दिमाग में चलता है वही। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो ब्लैंक स्टोरी घर से प्रिपेयर करके जाओ एंड राइट इट अराउंड योर पर्सनालिटी, जो चीजें आपने की। इवन आई टॉक टू वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, एक्स साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला अबाउट योर एम्बिशंस जो आपने कर रखे हैं अपनी जिंदगी में, हाँ उससे बनाओ अपनी ब्लैंक स्टोरी। इट इज अ गुड टू गो स्टोरी, सबसे अच्छी स्टोरी आपकी वही हो। हाँ, सबसे बेस्ट वही बनेगी। करेक्ट। एंड व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर WAT एंड SRT, आयुष? फॉर WAT एंड SRT, लाइक
इन माई होल एसएसबी जर्नी आई नेवर प्रैक्टिस्ड एनी वैट और एसआरटी कभी भी स्टार्टिंग से। बस ये था कि मेरे को अप्रोच पता था कि मेरे को वैट को कैसे अप्रोच करना है और एसआरटी को अप्रोच कैसे करना है। इन एसआरटी इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट व्हाट आई वाज डूइंग कि स्टार्टिंग से मैं ये कोशिश कर रहा था कि नंबर ऑफ एसआरटी ज्यादा हो जाए, क्योंकि उसको वो साइकोलॉजिस्ट इंप्रेस हो जाएगा। बट इन माई बोथ ऑफ दीज अटेम्प्ट क्या हुआ, 8th और 9th अटेम्प्ट में मैंने 8th अटेम्प्ट में 30 एसआरटीज की थी और 31 को आधा छोड़ दिया था, और इस वाले अटेम्प्ट में मैंने 44 अटेम्प्ट कर ली थी। लेकिन जो डिफरेंस था, बेस्ट डिफरेंस वाज कि क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैं उसको 2-3 लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। और जो एसआरटी में बोलते हैं कि आपके 2 टास्क होते हैं, एक प्राइमरी टास्क हमेशा होता है कि आप कहीं जा रहे थे फिर आपको कुछ प्रॉब्लम टैकल हुई, तो वो वाला टास्क आखिरी में कंप्लीट कर रहा था। इन वैट इट वाज अबाउट कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि न्यूट्रल वर्ड्स आते हैं, नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, तो आपको उसका वही कॉज भी पता होना चाहिए। आपने जैसे अप्रोच बताई थी स्टार्टिंग से कि कॉज होता है किसी का रीजन होता है, तो आप सोच के लिखो। सिंपल चीज है। मेरे को लगता है वैट तो बहुत आसान चीज है, सबसे आसान वैट ही है कि आपको बस पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, आपको नेगेटिव नहीं जाना है। ये करेक्ट। चीज है। एंड इफ यू टॉक अबाउट एसआरटी, तो एसआरटी का क्या खेला होता है ना उसमें, कि आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है वो समझना पड़ेगा। अगर हम्म, फायर का बोला है तो फायर बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो ये और सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो जब तक मेजर फायर ना बोला जाए या मेजर हम्म, एक्सीडेंट ना बोला जाए, डोंट अज्यूम इट टू बी अ मेजर एक्सीडेंट या फिर मेजर फायर लगी। अब बोलते हैं कि आपके घर में आग लग गई, तो घर में तो एक छोटे से कपड़े में भी आग लग सकती है, हाँ, जिसको आप किसी भी चीज से बुझा सकते हो, पानी से बुझा सकते हो। लेकिन लोग समझते हैं कि पूरे घर में आग लग गई। पूरे घर में आ गई। करेक्ट, सो हाँ, दैट वो इज आपकी व्हाट, साइकोलॉजी है। यस, वेयर दिस इज वेयर योर अंडरस्टैंडिंग बेसिकली कम्स, आपकी एसआरटी, हम्म, राइट? यस। हम्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसडीटी। तो एसडीटी का अप्रोच क्या था फॉर यू? अ, मतलब मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में मैं क्या कर रहा था कि एसडीटी मैंने लिखा था वो वाइट वाली बुक से। वो सब जानते होंगे, सर की बुक है। तो उसके बाद मैं सिर्फ उसको ही कॉपी करके आ रहा था। तो मेरे को पता था वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जिसमें वर्ड्स होते थे कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ये हूँ। तो वो फेक एसडी था। तो इस टाइम मैंने क्या किया, 8th और 9th अटेम्प्ट में एक्चुअल में लिखा अपने कि मेरे घर वालों को मेरे से रिलेटेड क्या व्यू है, या फिर मैं क्या उनको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ घर में। तो मैं उससे रिलेटेड ही अपनी कोई क्वालिटी लिखता था, फिर आगे एग्जाम्पल लिख देता था। अपने फ्रेंड से रिलेटेड अगर मेरे को फ्रेंड्स हेल्पफुल नेचर का मान रहे हैं, या प्रॉब्लम में अप्रोच कर पा रहे हैं, तो मैं उसको एग्जाम्पल लिख देता था आगे। मैंने 2 ही क्वालिटी लिखी हर पैराग्राफ में, लेकिन उनके एग्जाम्पल भी लिखे। सो आई थिंक ये इतना मैटर करता है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ लिख दो। करेक्ट। सो इफ यू वर राइटिंग कि मैं अपनी फैमिली वाले पार्ट में, पेरेंट्स वाले पार्ट में, इफ यू वर राइटिंग कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, पॉसिबल। सिर्फ अपनी तारीफ नहीं करनी, ओके? हाँ, जस्टिफिकेशन दो, कैसे रिस्पॉन्सिबल समझते हैं आपको। हाँ, आप घर के काम करवाते हो, झाड़ू लगवाते हो, पोछा करते हो, है ना? सब कुछ करो, इवन छोटे छोटे काम को, जो भी आप करते हो, हाँ। मेंशन दोस थिंग्स। यही आपकी और साइकोलॉजी है। और मेरे को क्या लगता है कि आपने जो एसडीटी में लिखा है वो आयो पड़ता है, मेरे को ऐसा लगता है, करेक्ट। क्योंकि मैंने हाँ। अपने दोनों अटेम्प्ट्स में वो, मतलब मेरे को लगा ऐसा, क्योंकि उनसे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन भी पूछे। जैसे मैंने अपने एसडीटी में लिखा था कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मेरे घर वाले मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो मैंने उसके आगे एग्जाम्पल भी लिखा था कि फैमिली मैटर्स या फिर कोई फंक्शन होता है। तो डायरेक्टली उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि कभी तुमने घर में ऐसे कंट्रीब्यूट किया है कि घर वालों ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो। तो मैंने लिखा ही ताकि ये क्वेश्चन आए ऐसा। तो मैंने बताया, फिर जैसे मेरी अब सिस्टर की शादी हुई थी, तो वहाँ पूरा फाइनेंस की जो चीज थी, पूरा फाइनेंशियल चीज जो थी, वो सब मैंने ही हैंडल करी थी अपने घर। तो ऐसे बताया उनको। फिर उन्होंने और क्वेश्चन पूछे कि आप बताओ कि राशन कितना आया था, इतने लोग की अगर हम खाना कराएंगे तो कितना राशन आएगा, कितना पैसा लगेगा उसमें। तो करेक्ट। मैं आंसर कर पा रहा था। तो ये मैटर करता है कि आप रियल चीज लिखो। करेक्ट। इवन इफ आई टॉक अबाउट माई एसडीटी, मैंने भी लिखा था कि मैं ग्रोसरी वगैरह, सब्जी वगैरह लेने जाती हूँ, मुझसे हाँ। टमाटर का रेट पूछ लिया था उन्होंने। हम्म। ठंडी के टाइम में टमाटर का क्या रेट होता है, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि क्या रेट चल रहा है इसका, आप बताओ मुझे। तो मैंने बता दिया था, क्योंकि मैं जाती हूँ। सो हाँ। बी जेन्युइन, जो चीजें आप करते हो वही लिखो, हम्म। अदरवाइज फंस जाओगे, आयु घुमा देगा। क्योंकि दे आर वेल ट्रेन्ड, हाँ। दे आर वेल ट्रेन्ड, तो वो आपको कहीं ना कहीं से घुमा के फंसा देंगे और आपका झूठ पकड़ा जाएगा। सो बी जेन्युइन विद योर आंसर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जीटीओ पार्ट। तो हाउ वाज योर जीटीओ?
जीटीओ मेरे को सबसे बेस्ट लगा हमेशा से एसएसबी में। बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है वो रिलैक्सिंग पार्ट होता है हमेशा से। तो स्टार्टिंग से ही मेरे को लगता था मेरा जीटीओ अच्छा है, क्योंकि ना एक चीज थी कि मेरा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत अच्छा था इन आफ्टर माय क्लास 12th ओनली। तो मेरे को जियोपॉलिटिक्स जियोग्राफी में कमांड अच्छी थी। तो जब भी जीडी में टॉपिक्स आते थे तो मेरे पास पॉइंट्स होते थे हमेशा बोलने के लिए। लेकिन मैं गलती कहाँ कर रहा था स्टार्टिंग में, कि मैं जीडी में बोलने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे को लगता है जीडी में जो आपको करना चाहिए बोलना प्लस सुनना, आप सिर्फ बोल नहीं सकते हो। तो इन अटेम्प्ट से मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ मैक्सिमम 4 बार बोला हो, 4 या 5 बार, लेकिन पॉइंट ऐसा दिया जो ग्रुप सुने और ग्रुप उस पर डिस्कस भी कर रहा था फर्दर। जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक था कि यूथ स्टार्टअप्स में आगे बढ़ रहा है, तो उसको कैसे फंड मिल रहा है, या गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से या फिर जो प्राइवेट इनिशिएटिव। तो मैंने वहां पे स्टार्टअप को शार्क टैंक का मेंशन किया था। तो फिर हमारा 10 मिनट जो डिस्कशन चला था वो शार्क टैंक से रिलेटेड चीजों पे ही चला। तो मैटर करता है आप क्वालिटी रखो अपने जीडी में। और स्टार्टिंग से ही है कि आप, मेरे को लगता है जीटीओ उसका नाम ही है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, तो उसमें नाम ही मेंशन है ग्रुप। आपके इंडिविजुअल टास्क तो हो गए। लोग पता क्या गलती करते हैं कि मैं इंडिविजुअल दिखा दूं मैं कैसे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप ग्रुप एज अ ग्रुप कैसे हो। चाहे आपका परफॉर्मेंस कम हो लेकिन ग्रुप का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, तो आप रिकमेंड हो जाओ। इवन आपके जो ये जीओआर वगैरह होता है, उसमें जो कैंडिडेट अकेले चढ़ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं ना, उसका भी असर पड़ता है। सो हाँ ट्राई टू अकम्पनी योर ग्रुप ना, कुछ ना कुछ आप उनकी हेल्प करो, चढ़ने में ऊपर, तो नीचे लाने में हेल्प करो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्रुप टेस्टिंग। नो, उनको जीटीओ हाँ, इसीलिए बोलते हैं। और ऐसा नहीं होता कि जीटीओ आपको देखता नहीं है, वो हमेशा देखता है। वो वो सबको चश्मा देखते इसीलिए पहनते हैं, इज इट? उनकी 10 आंखें होती है, 12 आंखें होती है, आप ये समझ लो। हैं। हर एक के ऊपर उनका वो जाता है, हाँ, राइट? वो सबको देखते हैं। वो अगर कोई बंदा कम एक्टिव भी है वो उसको भी देखते हैं। लाइक हमने अभी लास्ट अटेम्प्ट था तो एक बंदे ने जीटीओ सर से पूछ लिया था कि सर आप ग्लासेस क्यों पहनते हो हमेशा, मतलब सारे जीटीओ क्यों पहनते हो। तो उन्होंने तो वही रीजन दिया कि बहुत सनी है, और जबकि कभी बैंगलोर में धूप निकलती ही नहीं है। तो करेक्ट। वही रीजन है कि वो देख सबको रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं। लोग बोलते हैं कि अगर आप प्रैक्टिकल टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आगे नहीं आओगे, तो आपको जीटीओ रिकमेंड करे चांस कम है। पर जो इस 9th अटेम्प्ट में नेवी के लिए रिकमेंड हुआ, उसमें मैंने सिर्फ एक आइडिया इंप्लीमेंट किया था पूरे पीजीटी में। सिर्फ एक आइडिया था मेरा, बाकी 2 लोग थे वो बहुत डोमिनेटिंग थे, तो वही सारे आइडिया लगा रहे थे, वही पूरे ग्रुप को लेके जा रहे थे। लेकिन वो उन्होंने एक गलती कर दी कि वो इंडिविजुअल अपना ज्यादा देख रहे थे। तो क्या हो रहा था, अगर उसने आइडिया लगाया तो पीछे जो बंदे थे वो उनको क्रॉस नहीं करवा रहा था। तो मेरे को पता था कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को ग्रुप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो मैं क्या कर रहा था, अगर मैंने क्रॉस कर लिया तो जो बाकी बंदे बचे हैं उनको हाथ देना, उनको क्रॉस कराना, उनका लोड है उनका लोड कम कराना। अगर रोप बांधने का टास्क मुझे मिला है तो इतने अच्छे से बांधू कि वो आइडिया इंप्लीमेंट हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, कोई बंदे डोमिनेटिंग है, तो बस ग्रुप के साथ रहो। तो करेक्ट। अगर ग्रुप का परफॉर्मेंस अच्छा तो तुम्हारा अच्छा। ग्रेट। ओके Anish, एंड लेट्स टॉक अबाउट द अप्रोच फॉर जीडी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जीडी में कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि पॉइंट्स नहीं आते, या फिर हम्म हाउ टू नो स्पीक अप इन जीडी। जीडी में ऐसा भी पॉइंट आता है जहाँ पे नो सब चुप हो जाते हैं, या फिर वो अपने ही पॉइंट्स रिपीट करने लगते हैं बार बार, राइट? तो वो होता है एक फेज जहाँ पे आपको अपना वॉइस ऊपर उठाना है, राइट? वहां पे आपको स्पीक अप करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेक्चरेट पार्ट। सो लेक्चरेट में लोग बोलते हैं कि आपके जो टॉपिक्स होते हैं, जो आप टॉपिक लेते हो, दैट मैटर्स मोर, बट व्हाट इज द थिंग दैट यू फॉलो, लाइक इज दिस अ मिथ और नॉट? नहीं, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ मिथ। करेक्ट। सो इट डजंट मैटर कि आप कौन सा टॉपिक लेते हो। लोगों ने वो डिवाइड कर रखा है। एक बहुत बड़ी मिथ ये भी है कि ऊपर के 2 टॉपिक होंगे वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं या ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उससे, लास्ट के 2 टॉपिक खराब होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा लास्ट के टॉपिक चूज किए तो लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एट्थ अटेम्प्ट में मेरा एआई से रिलेटेड था। एट्थ अटेम्प्ट में मेरा एआई से रिलेटेड था, तो एआई मेरी ब्रांच थी, तो मैंने उस पर बोल लिया। सो इन लेक्चरेट व्हाट आई सजेस्ट कि क्या मैटर करता है कि आप कितना अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज के साथ साथ ग्रुप के सामने बोल पा रहे हो, ग्रुप से इंटरेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। बहुत से लोग उसको ऐसा स्पीच की तरह बोल देते हैं, करेक्ट। तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप सारे बंदों को देखो, एक एक करके अपना दो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 9th अटेम्प्ट का जो था जिसमें नेवी के लिए हुआ था, उसमें टॉपिक दिया था मेरे को कि
योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। अब मैं स्पोर्ट्स उतना देखता नहीं था, मैं क्रिकेट देखता था, लेकिन जब 2019 से धोनी रिटायर्ड हुआ तो उसके बाद से छोड़ दिया। लेकिन मेरे को वही था कि धोनी के ऊपर एक बुक पढ़ी थी मैंने, तो फिर मेरे दिमाग में वही आया। तो अब मेरे को था कि ऑर्गेनाइज कैसे करूं, बोल पाऊंगा बस इस पे तो 1 मिनट ही। लेकिन फिर मैंने वो, आप सबने वो मूवी देखी होगी, धोनी सर के ऊपर है, एम.एस. धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। तो मैंने वो पूरी मूवी सुना दी कि उनकी यंग लाइफ कैसी थी, स्टार्टिंग में कहाँ से कॉलेज से खेला। तो वही ऑर्गेनाइज हो गया ना, क्योंकि मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था कि वो उनकी चाइल्डहुड में लाइफ कैसी थी, यंग लाइफ कैसी थी, और फिर उन्होंने इंडिया के लिए क्या कर। Correct. That is what we call as presence of mind, right? तो वो बस यही था। अब टॉपिक तो लोग बोलेंगे कि टॉपिक तो सबसे लो वाला था, 4th। Right. Okay, Ayush. तो GTO हमारा हो गया. Now let's talk about this हाँ आपका इंटरव्यू पार्ट पे आ जाते हैं, which is one of the most important, right? क्योंकि इंटरव्यूअर आपका क्या करता है ना, हर केस में वो आप पे प्रेशर बनाने का ट्राई करता है, राइट? थिंक आयुष आपका नेटवर्क थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है. ओके, सो यू विल बी राइट बैक. तब तक आप लोग अपने क्वेश्चंस बता दो चैट बॉक्स में कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं आयुष से. कम ऑन, कीप इट क्विक. सो जैसे ही वो वापस आएगा वी कैन आस्क हिम द क्वेश्चंस. ओके, सो अपने अपने हाथ रेज कर लो इफ यू वांट टू आस्क हिम अ क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग और एनी टास्क. ओके, Abhinav is there. Right, Monica is there. Correct. So let him come back once and then we can continue with this thing. ठीक है? मैम एक क्वेश्चन आपसे है मैम. हम्म. मैम जैसे वो कोचिंग वगैरह का पूछते हैं, जैसे इस बार मैम क्या हुआ था, मैं ये रोप वगैरह अच्छे से मैम मैं बांध लेता हूँ बीइंग एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड ना. तो टास्क के मैम बीच में ही जब मैंने मैम वो रोप बांधी ना, तो उसने मैम जीटीओ ने तुरंत ही पॉइंट आउट करके बोला कि कहीं से कोचिंग वगैरह ली है. तो हाँ. मैंने मैम यस बोल दिया था. तो मैम Yes. कोचिंग मैम बताना है उनको या फिर मैम रहने ही देना है? यार, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि आपने कोचिंग ली है, बोल देना सर हाँ कोचिंग ली है. ऐसे उनको कोई दिक्कत नहीं है कोचिंग से, राइट? क्योंकि अगर आपको रोप Yes. बांधनी आती है तो उससे कोई मतलब नहीं. बट जब आप कमांड टास्क के लिए बुलाया होगा उन्होंने तो आपने बताया होगा, राइट, कि आपका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, Yes, मैम. right? So how to deal with the situation in interview if we are stuck somewhere or any answer not coming, what to speak? Like, did this happen with you, Vicky? ये आपके साथ हुआ है? प्लीज स्पीक अप, बोलो बोलो बोलो. आप जितना टाइम वेस्ट भरोगे लिखने में तो तब तक तो आप बोल दो, राइट? देन फिर क्यों आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा? इजिली आ जाते हैं यार क्वेश्चंस. मतलब वो कोई बाहर से ऐसे क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, राइट? मे बी अब अगर आपके जियो पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर वो दिक्कत हो जाता है. बट ऐसा कुछ हो नहीं आता कि आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया उन्होंने जो आपको नहीं आता. बट अगर नहीं आता है स्टिल यू कैन से सर नहीं आता, यू विल रीड अबाउट इट. गॉट इट? हाँ मैम. हाँ. ओके, आयुष इज बैक. सॉरी. Yes. राइट. हाँ आयुष. सो वी वर Am एट, I audible अभी? yes, audible. We were at the interview part now. So हाँ. So what do you think? Why does the interviewer put tactics? अब चलो वो PIQ CIQ तो बेसिक चीजें होंगी, वो तो सब बता लेते हैं, right?
लेकिन जब वो डीप जाने लगते हैं चीजों में, he uses his tactics of pressure, तो प्रेशर वाली टैक्टिक्स यूज करके वो देखना क्या चाह रहा है कैंडिडेट? सबसे पहला रीजन जो मेरे को लगता है कि कोई कोस्ट कैंडिडेट तो नहीं है। लोग आंसर याद करके भी आते हैं, मैंने देखा है इंटरव्यूज में। सबसे पहला वही है कि आप आर्मी ज्वाइन करने जा रहे हो या जो भी आर्म फोर्सेस में जो भी फोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, प्रेशर की सिचुएशन आएगी। अब प्रेशर में आप कुछ भी बोल दे रहे हो या कुछ भी एक्ट कर दे रहे हो, सो उससे मतलब वो तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है ना। सबसे फर्स्ट चीज़ वही है कि प्रेशर में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो चाह रहे हैं। लाइक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। लोग बोलते हैं कि आप कम आंसर करोगे तो आपके रिकमेंड होने के चांस कम है। मैं 8th अटेम्प्ट में जिसमें हुआ, जो फर्स्ट रिकमेंडेशन था, उसमें 15 क्वेश्चंस लगभग ऐसे थे जिसके मैंने आंसर नहीं किए थे। तो लाइक फॉर एग्जांपल, लेकिन वो क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे नॉलेज पार्ट को टेस्ट कर रहे थे। कभी नॉलेज पे आप इतना रिजेक्ट नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मेरे से नेपाल इंडिया का इशू पूछा था, तो मेरे को नेपाल इंडिया का इशू पता था कि वो जो काला पानी लिम्पियाधुरा और लिपू लेक वाला था। फिर उन्होंने उसका फॉलोअप क्वेश्चन पूछा कि आयुष वहाँ के पीएम कौन है, तो मैंने बताया पीएम बालन शाह। फिर उन्हें पूछा कि पार्लियामेंट का नाम बताओ, तो अब वो क्वेश्चन नहीं पता मेरे को, करेक्ट। तो वो क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत प्रेशर करके पूछ रहे थे चीजें, लेकिन वो मेरे को नहीं पता थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शूटिंग करी है, लेकिन मेरे से शूटिंग से रिलेटेड उन्हें जो बैलेट होती है उसकी, पायलट्स उसे बोलते हैं, तो उसका वेट पूछ लिया था, तो वेट नहीं पता था मेरे को। ऐसी चीजें हैं, आप पढ़ के जाओ दैट इज गुड। लेकिन अगर वो आपको प्रेशर कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपको लगता है कि ये तो बहुत बाहर का पूछ लिया, बस वो ये टेस्ट करें कि आप कितना अच्छे से हैंडल कर लोगे। मैं हर बार हर क्वेश्चन पे बोलता था कि सर आई डोंट नो बट आई लेट यू नो, तो इतना लंबा सा सेंटेंस बोलता था। फिर क्या हुआ, 8-10 बार मैंने ऐसा बोला। फिर उन्होंने मेरे से कोई और क्वेश्चन पूछा, वो भी मैं नहीं बता पाया, उसको सोचने लगा। फिर उन्होंने खुद से सामने से बोल दिया, अच्छा यू डोंट नो बट यू विल लेट मी नो। मतलब वो थोड़ा जोक वाली सिचुएशन बन गई थी, वो मजाक उड़ा रहे थे। मैं समझ गया था, उन्होंने प्रेशर करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं हुआ, मैंने अच्छे से हैंडल कर लिया। फिर 9th अटेम्प्ट में क्या हुआ, मैं 9th अटेम्प्ट का भी बताता हूँ। उन्होंने ऐसा, मेरा इंटरव्यू बहुत स्मूथ चल रहा था, 20 मिनट्स हो गए थे। फिर आप ऐसे कभी एक सेंटेंस बोलते हो, उसके बाद देन बोलते हो, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हो। मैंने उसमें वहाँ पे हिंदी वर्ड कोई यूज कर लिया था, कि मैंने शायद फिर यूज कर लिया था, देन की जगह फिर हिंदी का। तो उन्होंने वहीं मेरे को स्टॉप किया और बहुत लाउड वॉइस में बोला कि यू कांट यूज हिंदी है। सीधा उन्होंने बहुत तेज चिल्ला के बोला कि आयुष यू कांट यूज हिंदी है, यू आर नॉट कमिंग फॉर एनी सिविल इंटरव्यूज। मैंने बहुत हंस के बोला, सर आई कैन यूज हिंदी एज यू सेड इन दी स्टार्टिंग, कि आई कैन यूज हिंदी इन बिटवीन बट आई हैव टू रिवर्ट बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। तो अब उनके पास भी कोई आंसर नहीं था। तो बोलते हैं आयुष, फिर उन्होंने सीधा बोल दिया मेरे को डायरेक्टली कि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू चेक यू इन अ प्रेशराइज सिचुएशन, इसलिए मैंने आपको बोला ऐसा, नाउ यू कैन यूज हिंदी। बस अब वो बस प्रेशर चेक कर रहा है कि आप परफॉर्म कैसा करोगे। आप ऐसे डर तो नहीं जाते हो, डर के सहम के बैठना नहीं है। मतलब बहुत सारे बेसिकली कैंडिडेट्स होते हैं ना, प्रेशर में आके दे लूज दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब हाँ उन्हें ये याद नहीं रहता कि इंटरव्यू ने एकदम स्टार्टिंग में क्या कहा था, यू कैन हाँ यूज हिंदी, राइट? हाँ, वही करेक्ट। स्टार्टिंग में ही उसने बोल दिया कि आप हिंदी यूज कर सकते हो। And there was a मतलब question from Bhumika. She's asking that in interview, what kind of technical questions can be asked in Navy Tech Entry? लाइक आई वाज फॉर द पायलट एंट्री। पायलट में मेरे से पायलट रिलेटेड चीजें ही पूछी थी, लाइक एयरक्राफ्ट कहाँ फ्लाई करता है, कितनी हाइट पे फ्लाई करता है, एयरक्राफ्ट के इंजन कितने टाइप्स के हैं, एंड देन प्रोपेलर एयरक्राफ्ट और जेट एयरक्राफ्ट में डिफरेंस क्या है, एयर डेंसिटी क्या है। अब ऐसा नहीं है मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अगर मेरे को बेसिक साइंस आती थी तो मैंने एयर डेंसिटी का बता दिया था। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा प्रोपेलर और जेट एयरक्राफ्ट में कौन सा बेटर है और क्यों है बेटर। मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश की, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो वो भी आपको हेल्प करेंगे मेरे को लगता है। तो वो सिंपल बेसिक क्वेश्चन, अगर मेरा शुरू से फ्लाइंग के लिए था, तो फ्लाइंग के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एयरक्राफ्ट के बारे में पूछेंगे, उनके इंजन के बारे में पूछेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट का। और इफ यू आर गोइंग फॉर नेवी, तो नेवी के बेसिस, नेवी के एयर बेसिस सारे पूछ सकते हैं, और ट्रेनिंग स्कूल वगैरह। ये क्वेश्चन थे मेरे इंटरव्यू में। And what about the Army Tech वाले में? आर्मी टेक में
आर्मी टेक में भी एक फनी चीज हुई थी। मैं उस क्वेश्चन से पहले एक चीज बता देता हूँ। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा, आप रिकमेंड होने के बाद कौन सी एकेडमी जाओगे। सो अभी मेरे को याद था, क्योंकि मैं टेक टेक एंट्री पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, मैं रिटर्न एग्जाम के लिए था, एफकेट सीडीएस से जाएंगे आईएमए। तो लेकिन मेरे को था कि हमेशा तो ओटीए वाले ओटीए चेन्नई जाते हैं, तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस में बोला उनको कि सर ओटीए चेन्नई। फिर उन्होंने उन्होंने फिर तो जो जो बोला उन्होंने मेरे को याद है। फिर लेकिन वो आप ओटीए गया जाते हो, सो मैटर करता है कि आप अगर आर्मी टेक एंट्री के जा रहे हो तो आर्मी से रिलेटेड आप चीजें जान के जाओ, कि अगर आर्मी टेक एंट्री में जा रहे हो तो आप कौन सी आर्म चूज करोगे, कौन सी आर्म में जाओगे तो उसका मोटो क्या है, जैसे सिग्नल्स का मोटो पूछ रहे थे वो लोगों से। और इंजीनियरिंग क्वेश्चन ऐसे ही थे, अगर आपने मैंने जैसे मेरा एआई था स्पेशलाइजेशन, तो एआई से रिलेटेड कुछ चीजें थी, आजकल एआई कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस थे वैसे। Correct. Now, Ayush, let's talk about the last phase, which is your conference. So, conference से पहले डर लग रहा था कि क्या हाँ, होगा? वो सबको लगता है। Correct. And how was the conference? क्या क्वेश्चन पूछे थे दोनों कॉन्फ्रेंसेस में? हाँ, मैं फर्स्ट के बारे में पहले बात करता हूँ। फर्स्ट में मेरे को था कि मेरे को साइक से पास हो जाऊंगा मैं, और जीटीओ से भी पास हो जाऊंगा, क्योंकि जीटीओ परफॉर्मेंस मेरी बेस्ट थी। लेकिन मेरे को इंटरव्यू में डाउट था, एज आई सेड कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए थे। तो और जी हाँ, मेरे से इंटरव्यू ने बोल दिया था डायरेक्टली कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिकमेंडेड, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यस, तो मेरे को लग रहा था कि नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत, मैं बोलूंगा कि बहुत सस्पेंस के साथ रिजल्ट सुनाया। व्हाट हैपेंड वाज कि साइकोलॉजिस्ट सर आए थे जिन्होंने हमारा साइक लिया था। उन्होंने पहले 1 घंटे का लेक्चर दिया ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो उन्होंने सुनाया कि आप जो ये सब फॉलो करके आ रहे हो, ऐसे आप रिकमेंड नहीं होगे, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें सुनी। फिर मेरे ग्रुप में एक बंदा था जो 16th अटेम्प्ट के लिए आया था, वो पीआर था, सबको लग रहा था वो हो जाएगा। तो सर ने फिर रिजल्ट की बारी आई, सर ने फाइल खोली, और सर ने पहले ही बोला फाइल खोलने से पहले कि रिजल्ट अच्छा नहीं है। उससे पहले जालंधर में हमसे पहले वाला बैच वॉश आउट हुआ था, सो वी वर थिंकिंग कि 1 या 2 रिकमेंड होगा। सर ने फाइल खोली और सर ने सिर्फ नाम दिया उसका ही, जो पीआर था, 36 नंबर। और सबको फिर उसको खड़ा किया, क्लैपिंग हुई, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, और उसको चेस्ट नंबर पे ना के भेज दिया। फिर सर ने फाइल बंद कर ली। फाइल बंद कर ली, उसके बाद 15 मिनट का लेक्चर और दिया कि आपको कैसे करना है, क्या फॉल के आपको अप्रोच रखनी है एसएसबी के लिए। तो सबको लगा रिजल्ट अनाउंस ऑलरेडी हो चुका है, एक बंदा रिकमेंड हुआ है और हम लोग अभी जाएंगे। फिर उन्होंने खुद से पूछा, सो जेंटलमैन डू यू वांट वन मोर। तो देन ही अनाउंस माय चेस्ट नंबर, कि चेस्ट नंबर 33। सो वो थोड़ा सस्पेंस वाला था, क्योंकि मेरे को लग रहा था अब घर पे बताना पड़ेगा कि फिर से कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। और देन हाँ, क्वेश्चंस में को एक बार क्वेश्चन ऐसा था कि इस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में था कि मेरे को 30 मिनट्स के लिए मेरे को 30 सेकेंड्स के लिए बाहर रोका, 30 सेकेंड सिर्फ। और मैं अंदर गया, अंदर मेरे से नॉर्मल क्वेश्चन कि मेरे प्लेस के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था, और देन मेरे को बाहर भेज दिया। तो मेरे को श्योर हो चुका था कि इस बार तो नहीं होना है, अब तो कॉन्फ्रेंस आउट है। लेकिन फिर मैं हो गया। 9th अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि मेरे को मेरा वेट सबसे ज्यादा था, तो वेट उन्होंने कराया, लेकिन उन्होंने अंदर भी मेरे से अच्छे क्वेश्चन पूछे। अंदर उन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस पूछे थे आपसे रिलेटेड। तो अंदर उन्होंने पूछा कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन करी है। तो मैंने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा आपके बारे में बताया था। तो क्योंकि उन्होंने नाम भी पूछा था कि टेल मी द नेम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड योर मेंटर, तो मैंने बताया। सो उन्होंने फिर क्वालिटीज पूछी, तो मैंने वो भी बताई ऐसी, मतलब क्या क्या आपने ऐसा बताया कि मैं रिकमेंड हुआ। तो ऐसी चीजें थी। और बाकी क्वेश्चन है मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट से रिलेटेड। हाँ, ये भी है, मैटर करता है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ कि आपने प्रीवियस अटेम्प्ट में क्या गलतियां करी थी, एंड देन यहाँ पे क्या अच्छा किया। तो ऐसे क्वेश्चन थे। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू टेल कि जब आयुष का आर्मी टेक वाला जो 8th वाला अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ था, तो ही मैसेज मी ऑन टेलीग्राम कि थोड़ा कंफ्यूजिंग मैसेज था, पता हाँ नहीं हाँ हाँ क्यों हाँ अजीब सा। हाँ, वो एंड थोड़ी मैं मिसअंडरस्टैंड। सोकर उठी थी, आई वाज चेकिंग माय फोन, मैंने चेक किया, मैंने बोला हाँ क्या हो गया। तो उसके बाद फिर उसने फोटो भेजा, देखो रिकमेंड हो गया मैं। तो दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर मी आल्सो, राइट। So now up let's move forward with the question part. So yeah, Abhinav, go ahead with your question. Abhinav, are you there? यस मैम। हाँ,
हेलो भैया। अरे कैमरा ओपन कर लो, सामने आ जाओ, फिर बोलो आराम से। यस मैम। मैम 1 मिनट प्लीज। हाँ श्योर। क्या मैम? मैम एम आई विजिबल मैम? नॉट नाउ, अभी तो नहीं हुआ विजिबल। हाँ नाउ विजिबल, यस। जैन भैया। जैन जय मैम। हिंद यार। भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि जीटीओ में जो ग्रुप वाले टास्क रहते हैं जैसे पीजीटी हुआ, तो उसमें ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मतलब ये अपने आइडियाज इम्प्लीमेंट करना और ये इन दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर जैसे अपन आगे नहीं है, अपन लीड नहीं कर रहे हैं ग्रुप, तो अपन ऐसा क्या कर सकते हैं पीछे से भी अपन लगे कि अपन ने कुछ कंट्रीब्यूट करा है? जैसे यार मैंने अभी इसका एक एग्जांपल भी दिया था, तो वो नाम ही उसका है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। वो यही चेक कर रहा है कि आप ग्रुप में कैसे परफॉर्म करते हो। सो इट डजेंट मैटर आपने इंडिविजुअली कैसा किया है। बहुत से लोग आइडियाज लगा लेते हैं, बहुत से लोग नहीं लगा पाते, उनके पास नहीं आ रहे आइडिया, लेकिन वो ग्रुप में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। सो वो मैटर नहीं करता कि आप आइडिया बढ़ के आगे आइडिया लगाओ। अगर आपका कोई ग्रुप मेंबर आइडिया लगा रहा है, उसको सपोर्ट करो। उसको अगर आपको प्लैंक लगाना ही पड़ रहा है तो आप प्लैंक भी लगाओ, आपको रोप बांधनी पड़ रही है रोप बांधो, आपके ग्रुप मेंबर क्रॉस कर रहे हैं उनको हाथ पकड़ के उनको क्रॉस करवाओ। सो यही ग्रुप में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये भी एक काम है। तो ग्रुप मैटर्स मोर देन योर इंडिविजुअल टास्क। भैया आपका 31 एसएसपी था या फिर 32? मेरा 32 था यार, 32 हाँ, मेरा इस बार 31 था। 31 से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था एनडीए में। सेम भैया मैं भी। अब टीएस का है, अब देखो क्या होता है। मैं भी एनडीए एंट्री कॉन्फ्रेंस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। डॉली, डॉली सोलंकी। मैम हेलो हाँ दिव्यांश, दिव्यांशु। मैम, वो पीपीडीटी और टैट का मैम कैसे प्रैक्टिस करें, कहाँ से? पीपीडीटी देखो यार, आपके ना रिसोर्सेज बहुत हैं ऑनलाइन, बट यू आल्सो हैव टू बी वेरी, आपको चॉइसफुल होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे इररिलेवेंट पिक्चर्स भी हैं जो आपके कभी नहीं आती उसमें, है ना? तो माइंडफुल, बी माइंडफुल एंड वैसे ही पिक्चर्स निकाल के प्रैक्टिस करो। अब देखो यार, डिफेंस पाथवे का पूरा चैनल है, उस पे आई पोस्ट अ पिक्चर डेली, आपको प्रैक्टिस होती है, आपके रिव्यूज मिलते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, ये इनिशिएटिव आप ही लोगों के लिए ओके है। ओके मैम। डॉली, ओके डॉली गो अहेड। First of all, congratulations, Bhaiya. And Thank you. my question is, a defense aspirant should have qualities like important qualities. Should have they should have in your opinion जो उसको help करे in real life and also in SSPs. ओके, डिस्कनेक्ट हो गया क्या आयुष का? ओके नो इश्यूज। डॉली, इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। यू नो व्हाट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ OLQs, किसे कहते हैं? क्वीन Ma'am, ऑफ OLQs। Responsibility. confidence. ना 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 ना, क्वीन ऑफ OLQs इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Correct? So you have to be responsible. क्या किसी भी पार्ट में, घर में हो आप कहीं भी, try to be a responsible person. That's all. Okay? बाकी अपने आप आ जाएंगे। Okay? And आयुष, आप भी दे दो इसका आंसर। नहीं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करनी है तो वो घर से ही शुरू होती है। घर में मैं अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा हूँ, उसके बाद वो सोशल लाइफ और सब आता है। सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली। Okay, any other question, anyone? और भी किसी को कोई क्वेश्चन था? I think Monica had a question. Yeah, Monica. मेरा एक क्वेश्चन है, एफकैट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे एफकैट में 26 तक एज लिमिट है। सो अभी मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, तो मेरा 4 साल का कोर्स है, तो 7th और 8th सेमेस्टर्स है, उसके अंदर डिग्री नहीं आएगी, तो वो वहां पे मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? देखो, इफ इट इज मेंशन कि आप 3rd ईयर में दे सकते हो, तो यार कुछ सोच समझ के ही तो मेंशन किया होगा, राइट? तो जरूरी नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको टाइम मिलता है। ओके, सो उसके बाद इफ यू गेट रेकमेंडेड,
आपके मेडिकल्स हो जाते हैं, देन यू गेट अ टाइम, आपका आराम से 6 महीने 7 महीने मिलते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो एंड देयर आफ्टर अकेडमी जाओ। ठीक है मोनिका? बट मैं कर रही हूँ बीएससी नर्सिंग, दैट्स, एंड उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आता है तो उसके लिए लेट हो जाता है, और आई थिंक मेरी एज लिमिट वहाँ पे 25 के राउंड ऑफ होगी उस टाइम पे, 2029 तक। व्हाट यू कैन डू इज ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आता है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में मेल करके उनसे मंगवा सकते हो जब तक वो नहीं आता, राइट? एक बार उनको ट्राई करना अप्रैल करने। व्हाट इट? ओके, और एक मेडिकल से रिलेटेड पॉइंट है, मेरे 2 ड्रॉप आउट लिए थे मैंने 12th के बाद, अग्निवीर के लिए, नेवी एंड एयरफोर्स दोनों में मेरा हो गया था, बट वहां पे मैं मेडिकल अनफिट हूँ आइज के लिए, तो उसके अंदर कुछ बता सकते हो आप? तो आपका क्या पावर है इसका? एक आई 6/9 है और एक है 6/12। नहीं, पावर आई एम आस्किंग। आई थिंक -0.25 एंड इन 1.25 कुछ ऑफिसर्स है। वाले में देयर इज नो इशू विद दैट, आपका -3.5 डी तक जाता है, नो इश्यूज विद दैट। ठीक है? Okay. Salman is asking of the hero, who will be the hero of my story? It's you यार, आप ही रहोगे अपने हीरो, है ना? Right? Any other question? Anyone? Yes, ma'am. हाँ डॉली पूछो। Like, ma'am, someone who who never take any participate in NCC. I mean, not took any NCC or other things in their life, but still he is doing better in real in daily life, like taking responsibilities of your own family members and their academics and also their uh, सिबलिंग्स। तो मैम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली जो क्वालिटीज होती हैं वो डेवलप तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी ना, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो बंदा एनसीसी ही करे, बिकॉज ही हैज नॉट एनी अपॉर्चुनिटीज लाइक नॉट एनसीसी इन देयर कॉलेज एंड एक्सेट्रा। तो नो इश्यूज यार, कोई दिक्कत नहीं है आपका अगर एनसीसी नहीं है, बट स्टिल हाँ आप काम कर रहे हो, यू आर कंटिन्यूअसली इनटू दैट थिंग, वर्क्स। ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके भूमिका, गो अहेड। Ma'am, am I audible? यस ऑडिबल। Ma'am, in the interview, for example, if they ask about the name, I was writing about my name, for example, Bhumika. Do I have to know the zodiac sign as well? And also, that necessary? हाँ Uh, आयुष, समथिंग टू से ऑन दिस? नहीं उसके पास आई डोंट थिंक सो उनके पास इतना टाइम है कि वो जोडेक साइन पूछेंगे। इफ पूछेंगे भी तो यू कैन डायरेक्टली से कि सर मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैंने कभी इंटरेस्टेड जाना नहीं, मतलब मेरा आंसर यही होता है। करेक्ट। ओके रेनू। I have one question. हाँ अंजलि, गो अहेड। Yeah. Ma'am, what about presence of mind? Like, how can one develop it? प्रेजेंस ऑफ माइंड इज एक्चुअली इंटरव्यू में तो आप सबकॉन्शियस में चले ही जाते हो कहीं ना कहीं पे, है ना? Yeah, true. हाउ इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक? जैसे आयुष ने एक बताया कि उससे बोल दिया था कि हिंदी में आप बात नहीं कर सकते, सो लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली ना, जो स्टार्टिंग में देते हैं आपको। देन और आपका बाकी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे चेक हो सकता है कि मे बी ही कैन आस्क यू द रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है, द बैच नंबर, राइट? जैसे ही Yeah. आप अंदर आते हो तो यू कैन इंस्टेंटली स्टार्ट विद व्हाट इज योर रोल नंबर, तो उस टाइम पे वो चीजें याद नहीं आती। दैट इज Mm-hmm. वेयर योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज चेक्ड। व्हाट इट अंजलि? Yeah, ma'am. Okay. Thank you. It's all about knowing about yourself, that's it. Okay Renu. हेलो मैम। Sir, good evening, ma'am. My question is कि as I am also pursuing BTech and I am in the final year, so I have filled the form for the Navy SSC Tech, and they are asking for the mark sheet up to the 5th semester only, so we can appear for the SSB. But as of for the Army SSC Tech, they require mark sheet for 6th semester, and also they have mentioned that the course will commence in April 2027. So we will get the mark sheet of the 8th semester in June 2027. So am I eligible to apply for that? Ayush.
एक्चुअली नहीं, सीधा आंसर इसका नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी मेरा एक फ्रेंड रिकमेंड हुआ था, वो एसएससी टेक 67 में रिकमेंड हो चुका था ऑलरेडी। Yes, उसका sir. भी यही इशू है कि उसकी मार्कशीट जून में आनी थी, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वो अकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाया। ओके सर, तो सर लाइक आपने जो नेवी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो इसी वाला जो सेम ड्यूरेशन है अभी उसी अटेम्प्ट के लिए दिया था लास्ट ईयर? नो, मेरा नेवी का आफ्टर ग्रेजुएशन नेवी का ही फर्स्ट अटेम्प्ट था। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने एफकैट दिया, वहां में स्क्रीन आउट हुआ, फिर 2 बार मैं यहाँ से रिकमेंड हुआ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Ma'am, in PPDT, I'm unable to produce good idea. Means good story. गुड स्टोरी, आप यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस गुड स्टोरी। ओके, तो सबसे पहले गो टू डिफेंस पाथवे चैनल, उस पे सारी स्टोरीज बनी हुई है, जाके देखो कि स्टोरीज बनाते कैसे हैं। गॉट इट? यू आई थिंक यू कांटेक्टेड मी इन द मॉर्निंग, Yes, राइट? ma'am. आप ही थे ना? Yes, ma'am. Rightly said. करेक्ट। Yes, देखा मेरा ma'am. प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसे कहते हैं Yes, प्रेजेंस ऑफ ma'am. माइंड। Yes, ma'am. Ma'am, हाँ अंजलि, क्या हुआ? are you from Lucknow? आई एम फ्रॉम रायबरेली, 60 Oh, किलोमीटर्स फ्रॉम लखनऊ। okay, okay. Yeah. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? Yes, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, like, sorry, ma'am. Like, ma'am, we are going for both entries, like FCAT and CDS. And in blank stories, we write down same stories in both entries. तो मैम ये कोई इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा ना? देखो यार, हाँ आयुष, एनीथिंग टू से ऑन दिस? नहीं, वो दोनों एसएसबीज डिफरेंट ना, तो आप एक स्टोरी ही लिख के आओ। एक स्टोरी मुझे लगता है आप एक स्टोरी प्रिपेयर करो अच्छे से, दूसरी बैकअप में कर लो, फिर आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छे से याद आए उस टाइम लिख दो। करेक्ट, Right, भैया, Ma'am, thank you. ma'am, I have a doubt. पूछो। Ayush sir as well as Akanksha ma'am, if I want to prepare for my personal interview, how can I prepare, ma'am? जैसे कि भैया ने कहा psych I can prepare at my own, as well as GTO I can prepare at my own by watching news channels and this some stuff, as well as by practicing. So how can I prepare for my personal interview? That is one, as भैया told, it is also important. Okay, Ayush भैया, please give the answer. आई थिंक सो कि आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए ही सबसे ज्यादा खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। सो बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू इज ऑल अबाउट, फर्स्टली मतलब उसका एक पार्ट पीआईक्यू है, मेजर पार्ट 70% आई विल से कि पीआईक्यू से ही क्वेश्चंस आने, आपको पता है। सो प्रिपेयर द पीआईक्यू फॉर्म, आप खुद से अपना पीआईक्यू फॉर्म फिल करो कि मेरे को ये डिटेल्स डालनी है, और फिर उन डिटेल्स पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो प्रिपेयर करो। मेरे पास अपना खुद के इंटरव्यू के नोट्स थे, मेरी एक डायरी थी, उसमें एक एक क्वेश्चन था कि अगर मैंने ड्रॉप लिया है तो मैं उसका ये आंसर दूंगा या ये जस्टिफिकेशन दूंगा। अगर मेरे फैमिली मेंबर्स के बारे में उसने ये क्वेश्चन पूछा आयो ने, तो मैं उसको ये आंसर दूंगा। तो बेस्ट थिंग है आपके पास तो पीआईक्यू फॉर्म। सर जैसे आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माय पीआईक्यू फॉर्म, बट सर दिमाग में आता ही नहीं कि सर क्या व्हाट क्वेश्चन कैन वी कैन आस्क मी। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ शायद आपने पीआईक्यू ऐसे प्रिपेयर किया होगा कि आपने पीआईक्यू देख लिया होगा ऑलरेडी कि मैं अगर मेरे से फैमिली से रिलेटेड पूछा तो मैं ये आंसर दूंगा। आई विल सजेस्ट कि आप वो आंसर लिख लो, अपने आंसर्स लिख लो अच्छे से, और फिर उनके क्रॉस क्वेश्चन आपको खुद ही आ जाएंगे। अगर आप लिख रहे होगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रनिंग के बारे में लिख रहा हूँ, एज अ हॉबी लिख रहा हूँ, फिर आपको खुद क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा मैं रनिंग में कितना किलोमीटर दौड़ लेता हूँ, अच्छा उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी है, अच्छा मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके खुद बनते चले जाएंगे जब आप एक बार लिखना शुरू करोगे। और बाकी आई थिंक एक मैम के पास एक पीडीएफ है जिसमें क्वेश्चंस हैं फैमिली से रिलेटेड मेजर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो वो प्रिपेयर करो। सर एग्जैक्टली सर, इशू ये है सर, जैसे कि आई ऑलरेडी मेंशन्ड दैट आई हैव फिल्ड द पीआईक्यू फॉर्म, सर उसमें बात ऐसा है नंदू आपका वॉइस तो चला गया है। जैसे मेरा गैप मैम, what I was saying was, as I told sir about that, I have already filled. Sir, I thoroughly